Hello, everyone. Welcome to another talk show with ABCD Learning Never Ends, School of Psychology and Personality Development. I'm your host, Shakshi Jain. And today with us, we have Mr. Praveen Malik, a career counselor at Sarvosi Counselors, who has had immense in the field of education and as well as corporate sector. Today with him, we would like to tell you more about mental health awareness and especially about careers and education and how to progress in the field and domain so that you can advance properly. Hello, sir. How are you? Hello, fine. How are you, Sakshi? I am good, sir. If you could please introduce yourself and your role within the field. Thank you very much, Sakshi, for giving me an opportunity. Myself, Praveen Male, and teaching had been my passion in my young age. Then I shifted to the corporate world. So now I have a experience of 40 years of working in the corporate worlds and as well as in the educational field also. Now, after my superannuation, I have now prepared myself for again to jump into the educational counseling, career counseling, you can say, and communication, upgrade communication skills. That's very important factor it has become now. You were just talking about mental health. So Right, sir. mental health also has very important factor how you communicate with the others and you share your mental status with others. So working on that day in day out, meeting, greeting lot of students, parents, and so that they can clear their doubts and we can move forward. So could you tell me what actually inspired you? ऐसा क्या हुआ जो आपको इस फील्ड में इतनी इंटरेस्ट आई एंड यू फेल्ट लाइक यू वांट टू फर्दर वर्क अपॉन दिस फील्ड और आपको कम्युनिकेशन और करियर रिलेटेड चीजों से इंटरेस्ट आने लगा? Passion comes from the core of your heart. You have not to think about it. It remains in your heart, it remains in your mind. In young age, National Literacy Mission was started in 1988. Yes. The aim of this mission was to gain 75% of the literacy in the country. So I immediately, just in the earlier 40s or 30s or 20s, we have fought against the English people. So people jumped into the freedom struggle. But we jumped into the National Literacy Mission so that this mission can be successful and we can have a, when you can say the targets of 75%, at least 60 to 70% of literacy in the country. So when I jumped into this, keeping into my passion, because teaching was my passion, I found that adult education is much more difficult because they are out of their education since long time. But I picked up at least 5 centers at that point of time. I'm talking about 88, 89, 90, when National Literacy Mission was started. I was quite young, moving here and there and taking care of the things. That was the period of chalk and blackboard, because chalks, blackboards, everything was provided at all the centers, and you have to teach them, you have to tell them from basics. So that 5 year experience gave me a lot of confidence also. And I found that a lot of things can be done. When I came across the students at that point of time, I found that social media was not there in those 90s, like today, modern world. So students are having some sort of focus if they are properly guided. So that keep on moving me forward, and teaching had been my passion. So I keep on working with that also, besides my corporate work, in which I also again look for the teaching profession, taking care of this. So I had been a free career counselor or a guide or a coach also to a lot of students, to a lot of parents. So I've been working with that. So passion is very important in your life, and it had been my passion, and it is my passion also. You mentioned the education and like how education really impacts your career and whatever field you want to go into. What do you think is the role of formal education in career success versus experience? What is more important? Formal education
You have to start from pre-nursery, nursery first to 10. Then after 10th, we know we have to select the subject or the field. Then after 12, we know we call it. So it's there in the mind. It's structured. Deviation is not there. From first, you can go to sixth. From Yes. second, you can go to fourth. No. So it's well structured, well defined what you have to be taught. You have to be taught in first class, second class, third class, fourth class, fifth class. So education, formal education gives you growth step by step. No hurry up, no overnight change. So that is very, very important. You grow with the pace of your mind. You get the knowledge. You're not getting everything at one night. And you are getting the things step by step. You are learning, you are earning, you are living with the society. When you go to the school, you start learning how to share your happiness or how to share your sorrows, how to share your celebrations with your friends. If you are working, how to work in a team, how to give the to become a team leader, how to get the extract the work from your friends, though they are friends. But if you are a team leader, how to take work from them, how to share the responsibility. And all these things are definitely helpful in the society also. So, formal education teaches us the lifetime lessons. We believe in lifetime achievements. Lifetime achievements are not overnight. Similarly, formal education, we have to spend 10 years for basic. Then we have to spend 2 years for our, you can say, academic excellence in specific field. Then we have to go for the graduation. Then we have to go for the post graduation or anything beyond. The, education has no end to it. We have kept the education in such a way up to 10th they should get the basics of their knowledge. Up to 8th, then up to 10th, they should get basics. Then after 11th and 12th, you can get some structured in your specific field. Accordingly, you can expand yourself in your graduation, then post graduation. Then you can choose anything. So structured education, formal education is very, very important. And you have got so many things behind this, which is not visible, but it is very important because you learn everything in your educational institution. You are dressed up in your school, you have one particular dress, and Yes, sir. every student, especially girls, I'll say, they dream about ki when we will go out of the college or school, then we can wear anything. And once they come out, once they come out of the school, it becomes a great headache. Then how what to wear every day new dress, how to get the new dress on every day. You can't. School study bounds you for your education, for your dress sense, for your friend circle, for your eatables, for your time management. You have to take the math, science, everything you have to. So many things are being taught in formal education. So it's very, very important. So, and one should go through it. And in today's world, modern world, you can say online education is available and a lot of students are following it up. But so many things, drawbacks are also there. ठीक है benefits भी हैं उसके लेकिन so many drawbacks are also there which I just shared for the benefits of the social education. Formal education So you mentioned that in formal education, at least till class 10, everyone, most of us follow the same course structures. Then we have to decide upon which career and which field we want to go into. So how do you think individuals should identify their strengths and interests so that they can like go further into the field that is really interesting to them and that will actually guide their career paths? here comes the role of career counselor. Have you heard, you might have heard of psychometric test. Yes. Psychometric test is also one of the important tools to decide in which field one student can go. I think it should be made compulsory, at least in the class 10th, so that students, parents, they should get an idea of what kind of taste he is having. Sometimes or most of the times, student has to follow his parents' way. You have to become a doctor, you have to become an engineer, you have to become a lawyer, you have to become nobody will say you have to become a social media influencer. Earlier there were limited professions. Parents had passed through that process
and they had been knowing only these professions, so they were insisting their children to follow these. Now the world is open. You can say कि international world is open. So many career options are available, but lack of knowledge with the parents or with the students, they go for the limited options. So career counseling and psychometric test and some other tools are available which helps in identifying. Most importantly, I'll say that should be a passion of a student. What does he or she wants to do? उसको क्या अच्छा लगता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, बहुत पैसे कमाने को मिलते हैं। होता क्या है कि बच्चा आज की डेट में सक्सेस देखता है कि किसमें पैसा ज्यादा है, किसमें फेम ज्यादा है, किसमें नेम ज्यादा है, और शॉर्ट ड्यूरेशन किसमें। लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए। आपका इंटरेस्ट देखना, आपको देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, इकोनॉमिकली आपके पास वायबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं। मैं कनाडा जाके एमबीए का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मेरे पास वायबिलिटी नहीं है इकोनॉमिकली, तो व्हाई शुड आई कीप ऑन इंसिस्टिंग। डे ड्रीमिंग बढ़ गई है। नहीं, अरे साक्षी ने कनाडा जाके अगर एमबीए किया है तो मुझे भी करना है। भाई साक्षी के पेरेंट्स का इकोनॉमिकल कंडीशन अलग था, मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, तो डे ड्रीमिंग ना करके व्हाट इज रियलिटी आई शुड फॉलो। मेरा पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, और मेरा इकोनॉमिकली वायबिलिटी क्या है, उसके बेस पर। सेकेंडली, मोर इंपॉर्टेंटली, सक्सेस रेट क्या है उस इंडस्ट्री का। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सीए की इंडस्ट्री लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सक्सेस रेट क्या रहा अभी तक? 2%, 3%। तो 96%, 97%, 98% जो फेलियर आता है या फेलियर आता था, उससे कितना डिप्रेशन होता था। हम सक्सेस तो देखते हैं, अरे सीए बन गया तो कितने पैसे कमा रहा है, उसकी सालों की मेहनत, और सक्सेस रेट क्या है? 2%, 3%। अभी बढ़ गया, ठीक है, अभी अभी डबल डिजिट्स में नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट में, बट इट्स ऑन द हायर साइड। तो हमें इंटरेस्ट अपना देखना चाहिए, हमें अपना कैपेबिलिटीज देखनी चाहिए, हमें इकोनॉमिकल वायबिलिटी देखनी चाहिए, हमें सक्सेस रेट इंडस्ट्री का, कंपनी का भी जरूर देखना चाहिए कि इसको हम मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं। If you are at the top, you feel that you are amongst the toppers, then you must go for that. If you are a mediocre and you feel no, I can do everything, not possible. And success cannot be gained during a short duration, which is disturbing the students during this period. So you need some formal time to be spent to gain the academic excellence, to gain the skill development between for yourself. Then you can get the great success. So career counseling is very, very important at this point of time. Those schools have kept career counselors, but sometimes students do not listen to them. So career counseling and psychometric test. Later on, DMIT is also there. So there are some tools which should be adopted, which should be accepted by the parents, and it should be followed meticulously to accept, to select your career counseling and then move forward. आपने अपनी अभी अभी अपने आंसर में बोला कि हाउ टाइम मैनेजमेंट और कैसे शॉर्ट ड्यूरेशंस और कैसे प्रायोरिटाइजिंग की आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको कैसे किस टास्क को कितना टाइम देना है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर सम टूल्स और मेथड्स जो आप रेकमेंड करते हो हमारी प्लानिंग और शेड्यूलिंग ऑफ टाइम, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल, अचीव आवर करियर लेटर इन लाइफ। There is called SWOT analysis in the corporate world. Strength, weaknesses, opportunities and threats. आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। स्वॉट एनालिसिस कॉर्पोरेट वर्ड का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि यूज होता है, लेकिन अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो ये स्टूडेंट की लाइफ में भी आता है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, बेसिक्स मुझे आता है, अलजेब्रा आता है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है, बट मैं रिसर्च वर्क नहीं कर सकता। मुझे साइंस आती है, मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, बट केमिस्ट्री सोसो है, बायोलॉजी सोसो है। अगर मुझे सोशल स्टडी की, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है, मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है। तो पहले क्या था
अगर 10th के बाद आपको जाना है तो आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, या आपको कॉमर्स लेनी है। आज की डेट में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप पॉलिटिकल साइंस भी ले रहे हैं, आप मैथ्स भी ले रहे हैं, आप फिजिक्स भी ले रहे हैं आज की डेट। तो ये सालों की रिसर्च के बाद आया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, और अपॉर्चुनिटी क्या है बच्चे के लिए। तो उसके हिसाब से अगर वो करता है अपनी, तो अब सबसे पहले तो अपने आप को शेड्यूल करने के लिए आप अपने आप को एनालिसिस करें, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। मैं तभी आपको प्लान कर पाऊंगा, तभी अपने आप को शेड्यूल कर पाऊंगा। टाइम इज लिमिटेड। मेरा जो कैरियर काउंसलिंग का टाइम है वो लिमिटेड है। आप कैरियर काउंसलर से, फैमिली से, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं या नहीं भी करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, बच्चा कहता है मेरे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है। आज की डेट में बच्चा ये मान के चलता है जितनी नॉलेज मुझे है मेरे पेरेंट्स को उतनी नॉलेज नहीं है। नहीं है। ठीक है कि नहीं, इनको क्या पता होगा, तो वो डिस्कस करना पसंद नहीं करता। फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है पीयर लेवल पे, जिनकी नॉलेज लेवल भी आपके बराबर ही है। जी। और इसीलिए कभी कभी बच्चा डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है कि वो सही कैरियर को नहीं चुन पा रहा, प्लान नहीं कर पा रहा है, शेड्यूल नहीं कर पा रहा। बहुत जरूरी है कि कैरियर काउंसलिंग रहे, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें कि आप क्या चाहते हो, उसका इंटरेस्ट एटलीस्ट समझा जाए, जाना जाए, उसके बाद हिसाब से प्लान किया जाए और कुछ भी शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन बिना इंटरेस्ट के आप किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हो, उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में, ही कैन बी फिजिक्स स्कॉलर, बट हम उसको मेडिकल लाइन में डाल रहे हैं, हमने एनालिसिस उसका किया ही नहीं। सेम मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है, मैं बेसिक्स कर सकता हूँ बट रिसर्च वर्क नहीं कर सकता। मैं हो सकता है ज्योग्राफी में बड़ा रिसर्च वर्क कर सकता हूँ, लेकिन नोबडी विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में तो आप बीए इन ज्योग्राफी, एमए इन ज्योग्राफी कर सकते हैं, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी कैन बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। एंड ज्योग्राफी में अगर आप अच्छा करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें आप आगे चल के और पीएचडी भी कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज बिकम वेरी, ग्लोबल वार्मिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन द ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकल नॉलेज अगर आपके पास है जी सर। तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। साक्षी बेटा, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम, बच्चा अपने आप को प्लान करने के लिए फैमिली को भी लूप में ले, फैमिली को भी कॉन्फिडेंस मिले, और फैमिली भी हम्म। टीचर्स को, फ्रेंड सर्किल को या गाइडेंस को थोड़ा सा ले, समझे और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करे, देन इट कैन वर्क आउट वेरी स्मूथ। जैसे कभी कभी एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, कभी दोस्तों से बात करना इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे हम समझे कि कौन सी चीज अभी इम्पोर्टेंट है और उसको हम अपनी प्रायोरिटी बनाएं? इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, आपको टाइम स्लॉट दे। जी। जितना रिलैक्स आपको दोस्तों से बात करके मिल सकता है वो पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। क्या होता है कि आप, टू मच ऑफ टॉकिंग ओवर कॉल फोन, टू मच टाइम ऑन द सोशल मीडिया, too much time, you can say कि just putting yourself in the social media, selling yourself in the social media. Oh, हम्म। I should look good, or for all the dresses, for all the foods, for all the items you are taking. So too much time spent on anything is very bad. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, आप अपनी स्टडी को जानते हैं, आपके पास मालूम है कि मेरे पास कितना टाइम है, किस ड्यूरेशन में मुझे करना है। गोल सेटिंग अगर आपने कर रखी है, मुझे ये करना है, तो आप उसको तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपको रिलैक्स होना है, आई थिंक फ्रेंड सर्किल से अच्छा और कोई मौका नहीं होता। बट जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स के साथ आप 4 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए आउटिंग जाएंगे तभी रिलैक्स होंगे। आप अगर आधा घंटा, घंटा बात भी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, तो इट्स मोर देन एनफ। तो अपने प्लेयर को कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी स्टडी करना, गोल सेटअप है, सब कुछ है, तो प्लेयर कैसे मिलता है आपको, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे लाना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं, मुझे 102 डिग्री बुखार है, सिर में बड़ी दर्द हो रही है, मैं चाय पी लूंगा, लेकिन मुझे रिलैक्स पता है कैसे मिलेगा? दो चीजें, या तो मुझे कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए, या मुझे अच्छा पढ़ाने को। पढ़ाने को अगर, क्योंकि मेरा कीन इंटरेस्ट था टीचिंग में, पैशन था मेरा, तो मैं सब कुछ भूल जाऊँ। कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाएगा तो भी मैं उस दुनिया से बाहर आ जाऊंगा। तो आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोज सकते हैं, खोज के रखिए। आप जब, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, इफ यू एक्सेप्ट इट। आप जब स्कूल जाते हैं तो एक चीज बड़ी कॉमन होती है, एक तो ड्रेस हो गई, दूसरी क्या चीज होती है?
मैं तो स्कूल जाती थी तो वही यूनिफॉर्म थे, स्कूल बैग्स थे, वही बुक्स बैग्स, थी। स्कूल बैग्स आपके सबके कॉमन होते हैं। किसी का डिजाइन वाला होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, लेकिन स्कूल बैग के कंटेंट्स क्या है? बुक्स, बुक्स, नोटबुक्स, टिफिन। लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स। यस। अब ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कंटेंट चेंज हो सकते हैं, टिफिन में आपका कंटेंट फूड आइटम चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी सब पानी तो पानी है, जी। बुक्स तो हैं। हम्म। कॉपी में आपने क्या लिखा, आपकी नोटबुक्स है। ऑल दीज आर योर सेवियर्स। स्कूल में अगर आप बुक नहीं लेंगे, नोटबुक नहीं लेंगे, टिफिन नहीं लेंगे, हर चीज के लिए आपको परेशानी होती है। टिफिन आपको शेयर भी करना पड़ता है। तो ये चीजें कॉमन रही सालों तक, आज भी है, बड़ी रेलेवेंट है, ठीक है कि नहीं? जी तो बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी आती है, आप उसमें मेडिसिन तो नहीं रख के ले जाते। अगर मान ली स्कूल जा रहे हैं, उसमें आपने कोई सिरदर्द की गोली नहीं रखी होगी, आपने पैरासीटामोल नहीं रखी होगी, कोई नहीं रखता है स्कूल में। स्कूल देखता है कि हमें क्या करना जी। है। आपका बैग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप सारी जिंदगी कैरी करते हैं। अब उसमें क्या कैरी करना है ये आपके ऊपर है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, आग लग गई, कैसे बचेंगे? वहां पे जो एयर होस्टेसेस होंगी उनका कहना मानेंगे? अकेले हैं आप। तो जो स्किल्स मुझे पता होंगी और वहां पे कोई बैग होगा, उसको लेके पैराशूट से लेके जंप कर जाएंगे। यस, इट इज पैराशूट। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ में। आप जब स्कूलिंग करते हैं, आप जब अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, आप जब नौकरी करते हैं, आप जब फैमिली के साथ रहते हैं, हम्म। व्हाट इज योर पैराशूट, हु इज योर पैराशूट? पैराशूट वो चीज है जो आपको लास्ट टाइम पर, व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू जंप, देन यू नीड पैराशूट। जी। ठीक है। स्कूल लाइफ में बैग आपका पैराशूट रहता है। अगर कोई कॉपी आपकी नहीं है उसके अंदर, तो देन आपके लिए परेशानी हो जाती है। तो पैराशूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में अगर कोई परेशानी आई तो हु आर योर पैराशूट्स? आपकी जिंदगी में परेशानी आई तो आपके पैराशूट्स कौन है? मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स है एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, स्कूल में है तो टीचर्स आते हैं। ठीक है, यही होता है, हर किसी की लाइफ में यही होता है। परेशानी में आए और आपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करी, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर नहीं करी, तो आपके लिए लाइफ बड़ी हेल हो जाएगी। अगर पेरेंट्स परेशानी में आ गए तो उनको कौन हेल्प करेगा? हम ही लोग करेंगे। बच्चे करेंगे। तो जी। वी आर ऑल्सो पैराशूट। हम भी पैराशूट बन सकते हैं अगर हम पेरेंट्स को सीरियसली ले, फ्रेंड्स को सीरियसली ले। फ्रेंड को अगर पैसे की जरूरत है तो आपसे मांगेगा ना। जी। यू आर और आर पैराशूट। यस। सिमिलरली लाइफ को चैलेंजेस हैं। आपको चैलेंजेस तक कब तक फेस कर सकते हैं, आप फेस करिए। नहीं फेस कर सकते, लगता है मुश्किल है, आप उसको जंप करना है, उस चैलेंज से बाहर आना है, तब दूसरा चैलेंज आपको मिलेगा। लाइफ सेवर आपके पास होगा, कोई ना कोई लाइफ सेवर आपके पास हमेशा होगा। ये आपको देखना है कि आपको कैसे लाइफ सेवर को आइडेंटिफाई करना। दिस कॉल मेंटल ग्रोथ। आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है तो आप उस पैराशूट को उठाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, खोलेंगे और जंप करेंगे। अगर आप जी। जंप नहीं कर पाते हैं तो डेथ इज श्योर। सॉरी टू से, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये बेटा, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे झंझट है, बहुत सारी टेंशन है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मेरा पैराशूट क्या है, कौन है मेरा पैराशूट? मुझे पैसे की कमी हो सकता है, मैं मम्मी से मांग लूं, हो सकता है मैं पापा से मांग, हो सकता है नहीं मांगू यार, कितनी बार मांगूंगा, दोस्तों से मांग लूंगा, कल को लौटा दूंगा, वो भी मांगते हैं। हम्म। Every situation you have got parachute, you have to identify it. You yourself is also a parachute for others. You have to identify yourself कि मुझे इसकी हेल्प करनी है। लाइफ का एक लंबा लेसन है, यू आर ए पैराशूट और ए पैरासाइट। आप पैरासाइट बनना चाहते हैं या पैराशूट बनना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं या बीमारी बनना चाहते हैं? अगर आप पैराशूट बनना चाहते हैं, आपको भी पैराशूट मिलेगा। आप औरों की हेल्प करिए, लोग आपको हेल्प करेंगे। आप औरों की काउंसलिंग करिए, लोग आपसे काउंसलिंग लेंगे। पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को,
कैरियर काउंसलिंग को, टीचर्स को अपना दोस्त मानिए। तो जो 20 साल आपने स्कूल में निकालने, 18 साल या एजुकेशन फील्ड में निकालने, 10 साल नर्सरी, प्री नर्सरी, सारा अगर आप काउंट करते हैं तो कम से कम 17-18 साल हम एक स्कूल एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में निकालते हैं। उसमें हमें बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत है। हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी ग्रोथ को पहचाने, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। हम हेल्प लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर, आपने मेंशन किया कि कैसे हमारे आसपास बहुत सारे पैराशूट्स होते हैं, हमारे पास कितने सारे लोग होते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक दिस नेटवर्किंग इज इन आवर करियर एडवांसमेंट एज वेल, और हम कैसे करके ये नेटवर्किंग अपनी और बढ़ा सकते हैं? नेटवर्किंग क्या होती है? हम चार दोस्तों से अगर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त हैं, तो उसको कभी कभी हम नेटवर्किंग मान लेते हैं, जी। बट दैट इज एग्जैक्टली नॉट इट। आज एक न्यूज था न्यूज़पेपर में, डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़की की एक लड़के से दोस्ती हो गई। तो लगा लड़का बहुत ही पैसे वाला है। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए जब वो घर में अकेली थी, ये न्यूज है आज की, मतलब मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, उस लड़के को उसने अपने घर बुला लिया, दिल्ली की है, मैं अकेली थी, चलो मैं सोशल डेटिंग ऐप से दोस्ती तो हो चुकी है, थोड़ा सा दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाते हैं। वो लड़का घर पे आया, अच्छे से बातचीत हुई, उसने लड़की के हाथ पैर बांधे, अपने दोस्त को बुलाया, लड़की को बांध के एक तरफ बिठा दिया, घर को लूटा और आराम से चला। लड़के ने दोस्ती करी थी कि इसके पास नेटवर्थ इसकी बहुत अच्छी है। लड़की ने दोस्ती करी कि ये अच्छा है, चलो एक अच्छा फ्रेंड मिलेगा मुझे, तो डेटिंग ऐप के थ्रू हो गया और उसने उसको घर बुला लिया और घर आके उसने लूट लिया सब कुछ। बाद में पुलिस केस हुआ, सब कुछ वो धीरे धीरे पकड़े गए, आज का ही न्यूज है। नेटवर्किंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेटवर्क देखकर की जा रही है या किसी के इन्फ्लुएंस में की जा रही है, तो वो आपके काम नहीं है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं। मुझे यार उन्हीं से दोस्ती करनी जिनके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया हो, या जिसके पास फॉर्च्यूनर कार हो या होंडा सिटी कार हो। आप नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फील्ड को चुनिए कि आपकी फील्ड क्या है, उस फील्ड से रिलेटेड, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन से लोग हैं, उनके साथ सोशल मीडिया पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, बातचीत करिए, उनके व्यूज को पढ़िए, उनके। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं। अब मैं अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एमिनेंट लोग हैं, उस इंडस्ट्री के लोगों को देखता हूँ, फेसबुक पे जुड़ता हूँ, उन लोगों को थोड़ा स्टडी करता हूँ, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी लाइफ स्टाइल को, उनके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, बायोग्राफी को पढ़ता हूँ। आई एम इंक्रीजिंग माई, नॉट ओनली माई नेटवर्किंग, आई एम इंक्रीजिंग माई नॉलेज ऑल्सो। बिल्कुल। आप किसी तरह का इवेंट होता है ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड, हम्म। उसमें आप जाते हैं, आपको मिलने का मौका मिलता है, लोगों से आप मिलते हैं, चाहे सिर्फ हैंडशेक होता है, बट यू गेट ए गुड कॉन्फिडेंस टू फेस देम। If you get a chance to interact with them, so you have to prepare what kind of question you have to ask them. Sir, आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, it cannot be that. So you have to prepare yourself. That is networking. Networking means you have to study the people, those who are at your above level, to whom you would love to follow, to where you want to reach. जी। वो नेटवर्किंग, आप वहां से गाइड, पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, आपको गाइडेंस वहीं से मिलेगी, आपको सपोर्ट वहीं से मिलेगी। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, आप धीरे धीरे नेटवर्किंग बढ़ाते हैं। रातों रात अगर आप फेमस हो रहे हैं तो वो नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग वही है कि आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं, दोस्तों को समझते हैं, उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये सक्सेस मंत्र अचीव किया, उनका मंत्र क्या है। नेटवर्किंग आपके बहुत काम आती है। सेकेंडली, नेटवर्किंग या रिलेशनशिप शुड बी लाइव टेलीकास्ट। आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारी नेटवर्किंग नहीं बन रही है, रिलेशनशिप थोड़ा सा बन रहा है, जी। जान पहचान थोड़ी सी बन, लेकिन एक दूसरे को उतना ही जान रहे हैं जितनी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, आप पूरी करते हैं। दैट शुड बी लाइव टेलीकास्ट। मैं फिर कह रहा हूँ,
कि आपको समझ में आना चाहिए कि सामने आर्टिफिशियल वर्ड में आप नहीं नेटवर्किंग बढ़ा सकते। जैसे मैंने आपको डेटिंग ऐप अभी बताया, जी आर्टिफिशियल है, आप दोस्ती कर रहे हैं डेटिंग ऐप पे जाए, जी आप किसी को समझ नहीं पाया कि सिर्फ ऐप पे गए डेटिंग कर। तो जितना ऐप्स को आप कम करेंगे अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया को लिमिटेड यूज में लाएंगे, you will be able to understand the people, you will be able to network yourself, you will increase your net worth of your knowledge and your relationship and your networking also. स्टडी जी। एंड स्टेबल दोनों चीजें आएंगी अगर आप बहुत कम एप्स को यूज करते हैं, लिमिटेड एप्स को यूज करते हैं, रेलेवेंट एप्स को यूज करते हैं, रेलेवेंट फीड को स्टडी करते हैं, रेलेवेंट पर्सनैलिटीज को स्टडी करते हैं, यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड नेटवर्किंग लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। So you mentioned how networking के लिए we also use social medias, right? So what are the benefits and what are the drawbacks of using social media for professional networking? करियर से रिलेटेड जब हमें नेटवर्किंग करनी होती है। सोशल मीडिया इज ए बूम, सोशल मीडिया इज ए कर्स, दोनों चीजें हैं उसके अंदर। वो आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हम किस चीज का बेनिफिट उठा पाते हैं। आपको अगर थोड़े से पाप मिलते हैं तो कुछ ना कुछ पुण्य भी आ जाते हैं, पुण्य मिलते हैं तो पाप भी मिलते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो रहते रहता है। सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है जिससे आप बच नहीं सकते। डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया से क्या चाहते हैं। आपने कहा कि नेटवर्किंग, और मैं देखता हूँ यार कि मुझे एजुकेशन फील्ड में कौन कौन लोग आगे हैं, या साइंस में मैं देखता हूँ लाइफ में कौन कौन आगे है। ये मैं कहता हूँ यार मैथ्स की फील्ड, मतलब मेरी फील्ड क्या है, मैं किस फील्ड को जानना चाहता हूँ। अगर मैं करियर काउंसलर हूँ, मैं करियर की लाइन में जाना चाहता हूँ, एजुकेशनिस्ट से मिलना चाहता हूँ, तो मैं एजुकेशनल फेयर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, उस तरह के सेमिनार्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। तो सोशल मीडिया से मुझे इसकी जानकारी बड़े आराम से मिल सकती है। आई कैन मेक ए लिस्ट कि यार ये 10 लोग हैं बड़े एमिनेंट है एजुकेशन फील्ड में। अब मैं नेटवर्किंग सोशल मीडिया पे घूम रहा हूँ, मुझे ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मुझे फिल्म लाइंस के बारे में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मुझे क्या नाम है, यू कैन से कि ऑयल एंड गैस लाइन के बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। मुझे क्या करना है? मैं अगर फिल्म स्टार से प्रभावित हो गया, नेचुरली जब हो जाता है आज की डेट में, सभी उनको स्टडी करने लग गया, उनको देखने लग गया, तो अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटी को भूल गया। तो सोशल मीडिया के लिए जितने कम एप्स रखेंगे, एप्स आर योर एप्स, जैसे कहते हैं ना ऐब नहीं होना चाहिए बंदे में, तो जितने हम्म। कम ऐप होंगे उतने ही कम ऐब होगा उसके। सर। तो रेलेवेंट ऐप है अगर आपके पास है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। एक मैंने कहा था स्वॉट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या। अगर फिल्म स्टार मेरी वीकनेस है या हीरोइंस मेरी वीकनेस है, तो मैं उसको स्टडी करने जरूर जाऊं, क्योंकि आदमी वीकनेस की तरफ जल्दी जाता है, तो उसकी तरफ जरूर जाऊंगा। तो मुझे उसी को देखना है कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है। तो अपने आप को अगर आप थोड़ी वीकनेसेस को पहचान लेते हैं, अपने थ्रेट्स को पहचान लेते हैं कि मैं इस फील्ड में अगर जाता हूँ, ओपन करता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने टारगेट फिक्स किया कि मैं यार 5 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करूंगा, तब मैं आधा घंटा रिलैक्स के लिए सोशल मीडिया पे जाऊंगा। मैंने 5 घंटे में 4.5 घंटे में कर लिया, तो मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया। आई कैन स्पेंड, आई कैन सी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे बेटे को अगर बाहर खेलने जाना है, तो उसको टारगेट रहते थे कि ये होमवर्क खत्म करने के बाद ये उसको सुनाना है, जो भी उसको लर्न करके सुनाना है। अगर उसको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो वो 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में उसको सारा काम फिनिश करके आपको सुना भी देता था। तो ही इज गेटिंग 15 मिनट्स मोर फॉर द प्लेइंग। जी बिल्कुल। वही चीज आपके ऊपर है कि अगर आप अपने टारगेट्स को फिक्स करके चलते हैं कि यार इसके बाद मुझे आधा घंटा सोशल मीडिया पे लगाना है, आप डेफिनेटली, सोशल मीडिया हैवी हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत जल्दी दिमाग को खराब कर सकता है। लेकिन अपने टारगेट्स के साथ उसको लिंक कर लेते हैं कि यार ये मुझे अचीव करना है, देन आई गो फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अपडेट मिला उसको भी आप नोट डाउन करें, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो जॉट डाउन करें, जी वो भी आपको बहुत हेल्प करता है और फिर आगे बढ़ने में मदद करता है। things moves very smoothly if you are able to analyze yourself कि यार मैं जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मैं कहता हूँ आप शाम को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि आज मैंने क्या अचीवमेंट किया, मेरा इस वीक का टारगेट क्या था, क्या मैं टाइम से चल रहा हूँ। मुझे लगा यार मैंने 5 दिन में ही खत्म कर लिया, तो मेरे पास अभी 1 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास। अब उस 1 दिन एक्स्ट्रा में मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ और 1 दिन एक्स्ट्रा मैं सोशल मीडिया पे भी लगा सकता हूँ।
और वो सोशल मीडिया पे एक दिन मेरे अगले 5 दिन खराब कर दे। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, उसके बिना आप नहीं रह सकते, एक नेसेसरी एविल है, उसको आपको ध्यान से देखना है, उसको ध्यान से यूज करना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि अपनी लाइफ में कैसे उसको यूज करना है। तो डिपेंड करता है कि आप में अपने टारगेट्स को कैसे पूरा करते हैं। सोशल मीडिया आपको टारगेट्स पूरा करने में, नेटवर्किंग बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इट डिपेंड्स कि हाउ डू यू यूज। सोशल मीडिया बैड इन्फ्लुएंसर भी है, तो उस इन्फ्लुएंसेस को रोकने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। आप मेरे को ये बताइए कि कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज और अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को डेवलप कर सकते हैं। कोच बनना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इसकी रीच बहुत बड़ी है और आपका टारगेटेड ऑडियंस तक भी ये पहुंचता है। हम्म। और टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया है, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट बांटा है, वो सुबह सुबह जाएगा, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। सोशल मीडिया तो किसी भी टाइम देखा जा सकता है, बिल्कुल। अक्रॉस द ग्लोब है, जी। अक्रॉस द ग्लोब ग्लो। है। तो so many factors are available with the social media. If you want to increase your professionalism or professional approach to the customers, or you can sell yourself, so social media is very very important factor. It depends कि how do you use it. आपका ड्रेस सेंस प्रॉपर होना चाहिए सोशल मीडिया पे, आपकी वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं अपने बारे में, ठीक है कि नहीं। और अगर आप उसको सही प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपनी मीडिया को, मतलब अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को, उसने किसी एडवोकेट्स का ग्रुप ज्वाइन किया, उसने एक टीचर्स का ग्रुप ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लिया उसने ग्रुप, और हर ग्रुप में अपनी पोस्ट डालनी शुरू करी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको मेरा यूज करना तो करिए। तो इस तरह से उसने डालना शुरू किया उसने। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जो बिजनेसमैन का ग्रुप है, टीचर्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू उस प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहां पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है और उसको यूज करता है, मान लीजिए वो फिक्की का मेंबर बनता है, पीएचडी चैम्बर का मेंबर बनता है, तो उसमें अगर अपना प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो दैट विल बी मच मोर यूजफुल जी। देन इन एडवोकेट्स और टीचर्स प्लेटफॉर्म और ग्रुप। सो ये आपको देखना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सेल करना है। सोशल मीडिया बहुत वास्ट है, हर जगह पे आप जाना चाहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है आपका गलत टारगेट ऑडियंस आ जाए आपके पास। आपको ये भी देखना है कि मेरा ऑडियंस कैसा आता है, तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, इसकी रीच को, टारगेटेड ऑडियंस को देखना है आपको, और ग्लोबल अपेयरेंस को देखते हुए आप अपने प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया का यूज ढंग से करें। आपके थ्रू भी मेरी सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। अच्छा सर, how is it that someone can continuously improve their skills and knowledge in any field, in their career, in any field? थ्रू द नेटवर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग फॉर द ऑयल कंपनी जी। and I want to improve my update my knowledge, जी। or I'm an advocate, हम्म। or I'm a teacher, I'm a coach. So in whatever profession you are, you have to see what is updated knowledge। कुछ नए रूल्स आए हैं तो एडवोकेट के लिए बहुत जरूरी है, कुछ नए, अगर कुछ नया एक्सीलेंस क्रिएट किया है किसी ने, टीचर के लिए बहुत जरूरी है, कोच के लिए बहुत जरूरी है। कुछ नए स्ट्रेसेस आए हैं मार्केट में, तो हमारे जैसे एजुकेशनल काउंसलर के लिए जाना बहुत जरूरी है कि क्या स्ट्रेस मार्केट में चल रहा है, क्यों बच्चे स्ट्रेस में हैं। तो इट डिपेंड्स, बहुत ज्यादा आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस है, आपके पास स्किल डेवलपमेंट है, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। ऑब्सोलीट होने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि अपग्रेड करने में टाइम लगता है। एक बहुत पहले जब हम जवान थे तो एचएमटी की वॉचेज आती,
HMT की वॉचेस खरीदने के लिए आपको शोरूम पे जाके वहां बुकिंग करनी पड़ती थी कि मेरे भाई की शादी है, बहन की शादी है, मुझे HMT का वॉच चाहिए, गोल्डन ब्रेसलेट। तो वो आपको बुकिंग करते थे, फिर वो आपके लिए ऑर्डर बुक पूरा करते थे, इतना ज्यादा सेल था। बट ओके। दे हैव नॉट अपग्रेडेड देयर, यू कैन से कि डिजाइंस, हम्म। दे आर ऑब्सोलीट। नोकिया का मोबाइल जी। ऑब्सोलीट हो गया, जो कि पहले सबसे पहला हमारा वो था, टूल था। जी बिल्कुल। तो आपको अगर अपने आप को आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपको ऑब्सोलीट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सही बात। अपग्रेड करना है तो जो भी मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारे टाइम में बहुत कम होता था। जी। आज की डेट में साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कट है, आप दीजिए, आपको पता लग जाए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हम रिश्ते कैसे करते हैं? अगर रिश्ता कराना हो एक लड़के का लड़की का, तो क्या चीज का मिलान करते हैं? उनकी सोच का, पर्सनालिटी का। नहीं, कभी होता है आपकी लड़का लड़की से पूछता है तेरी पर्सनालिटी क्या है, तेरी सोच नहीं। क्या है? नहीं नहीं। हॉरोस्कोप मिलाते हैं। पेरेंट्स क्या जी। मिलाते हैं? हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप। और हॉरोस्कोप में अगर 1 मिनट का भी फर्क हो टाइम में, तो हॉरोस्कोप चेंज हो जाती है। जी। ठीक है, इज इट क्लियर? जी आज बिल्कुल। DMIT अवेलेबल है आपके पास। DMIT में आप थंब इंप्रेशन लेते हैं, हम्म। उसकी पूरी पर्सनैलिटी स्किल्स निकल कर आ जाते हैं कि इस बच्चे की, लड़के की, लड़की की क्या पर्सनैलिटी है, क्या सोच है, क्या अप्रोच है उसकी लाइफ। जी। लड़के की भी निकाल लीजिए, लड़की की भी निकाल लीजिए, मिला लीजिए। आज की डेट में कहा जाता है कि आप अगर मैरिज करने जा रहे हैं तो एक मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। जी। उसके कुछ मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लोग आज सही कराते बात। हैं। आज की डेट में लोग कराते हैं जी बिल्कुल उसके करवाते हैं। एंग्जाइटी लेवल को चेक करने के लिए, यार इसका एंग्जाइटी लेवल कितना है। मैं टेस्ट का नाम नहीं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा हो रहेगा, बट एनी हाउ मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि टाइम हैज चेंज। हम्म। You have to upgrade yourself. You have to change yourself all the time. You cannot be work out with the old model schools. आज के बच्चे अगर पेरेंट्स से कंसल्ट नहीं करते हैं, पेरेंट पिज्जा मंगाते हैं, पेरेंट्स को पिज्जा के बारे में मना कर देते हैं खाने से, बच्चे नहीं खाते हैं, पेरेंट्स नहीं खाते हैं। बच्चे अपने लिए ऑनलाइन फूड मंगाते हैं जो कि पेरेंट्स कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं दे आर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स एंड वी आर द मॉडर्न। और हर पीढ़ी के साथ यही रहता है कि वी आर द मॉडर्न और हमारे पेरेंट्स बड़े ओल्ड ऑब्सोल्यूट। स्कूल है। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको अपग्रेड करना है। तो उस स्पेसिफिक फील्ड, जो भी आपका फील्ड है, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, आपको उसमें अपग्रेड रखना है। उसमें जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी लेटेस्ट नॉलेज आ रही है, उसके लिए स्टडी करिए। उसके लिए आप उसकी मैगजीन सब्सक्राइब करिए, उसकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करिए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को सब्सक्राइब करिए। मान लीजिए मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले, और उस समय, कुछ समय पहले की बात करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर वास्ता आज भी उसको गॉड ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है। अगर मैं क्रिकेट सीखना चाहता हूं और मैं सचिन तेंदुलकर की साइट पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके उसके टेक्निक्स को देखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसके क्लास नहीं गेन कर सकता, बट टेक्निक्स को ले सकता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई अचीवमेंट्स के लिए बैठे हैं। आप उन अचीवर्स को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि वी हैव परस्यूड अ करियर, मे बी ड्यू टू सम प्रेशर, और मे बी वी हैड इंटरेस्ट इन दैट करियर एट दैट पॉइंट, बट अब वो करियर आउटडेटेड हो गया है या अब हमारी इंटरेस्ट एरिया चेंज हो गई है, सो वी वांट टू गो इनटू अ न्यू फील्ड, न्यू करियर। तो हम कैसे एक करियर से दूसरे करियर में पिवोट कर सकते हैं? हैं। एक होती है इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री में हूँ, जी। मेरा रोल है मैन्युफैक्चरिंग का, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पार्ट हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इज ए बिग प्रोसेस, मैं किसी एक यूनिट का पार्ट, या मैं मार्केटिंग में हूँ, या मैं सेल्स में हूँ, मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात कर, या मैं हम्म। फाइनेंस में हूँ। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि मैं इसमें अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहा। हम्म। मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी है, अब अपनी इंडस्ट्री को भी चेंज करते हैं, अपने रोल को भी चेंज करते हैं, तो आप दोनों चीजें मैच नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आप अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को रखिए, जिस इंडस्ट्री के बारे में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2 4 5 7 10 साल आप लगा चुके हैं, आप अपने रोल को देखिए। मैं मैन्युफैक्चरिंग सेट के मार्केटिंग में आ गया, बिकॉज ऑटो के बारे में तो मुझे नॉलेज है ना, जी उस इंडस्ट्री की तो मुझे नॉलेज है ना, मुझे जी थोड़ा सा रोल चेंज करना। मार्केटिंग में हूं, मैं सेल्स में आ गया, सेल से हटा मैं प्रोडक्शन में आ गया। तो आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, सेल्स मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लेकिन आपने इंडस्ट्री को सेम रखा और उसका एक रोल अपना चेंज कर लिया और अपने आप को ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करी। हम्म, ठीक है। जी सेकेंडली, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इंडस्ट्री चेंज करनी है, हम्म, मैं मान लीजिए फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, मैं टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहता हूँ, कुछ भी, मतलब आपने कोई भी डिसाइड कर, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहता हूँ, हम्म, आपको उस इंडस्ट्री को भी लर्न करने के लिए थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल चलिए, आप ऑटो से निकले, आप ऑयल में आ गए, ऑयल एंड गैस में आ जी गए, ठीक है। वहां पर आप मार्केटिंग में थे, तो यहाँ पर भी अपनी रोल को मार्केटिंग में ही रखिए। हम्म, इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं तो अपने रोल को चेंज मत करो। मार्केटिंग में आपको बेसिक्स फंडास ऑफ द मार्केटिंग पता है, हाउ टू अप्रोच द कस्टमर, हाउ टू डील विद द कस्टमर, हाउ टू talk to the customer, how to behave with the customer, how to handle the complaint, what is the platform which you have to provide to the customer. Sir, in case you are not satisfied, please mail it to this. हम्म, And how to send relevant data to your company कि सर ये मैंने मार्केटिंग करी, ये इंडस्ट्री ये है जिनके पास हमें ये ऑर्डर्स मिला है, इसको हम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इंडस्ट्री चेंज करी लेकिन अपना रोल चेंज नहीं करा। तो हर इंडस्ट्री में थोड़ा सा रोल तो कॉमन चलता ही है। तो आप इंडस्ट्री को सेम रखें, अपने रोल को चेंज करें, जिस इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं। अपने डिससेटिस्फेक्शन को आप थोड़ा कम करें। जी आपको लगता है कि मेरा नहीं, हम्म, आप इंडस्ट्री अगर चेंज कर रहे हैं तो कोशिश करें रोल वही रखें। एग्जांपल लेता हूं, आप टेलीकम्युनिकेशंस में चले, हम्म, आपने ऑटो छोड़ दिया, तो टेलीकम्युनिकेशंस में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे जाएंगे? आप तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर नहीं, बिल्कुल तो ऑटोमोबाइल के इंजीनियर थे। जी मार्केटिंग में आप फिर भी चले जाएंगे, सेल्स में आप फिर भी चले जाएंगे। सही बात है कभी भी अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं, तो देयर जी आर टू फैक्टर्स, वन इज इंडस्ट्री, वन इज द रोल। नेवर गो, इट इज माय एडवाइस ओनली, हम्म, never go for, you can say कि swapping of both the things at the same time. You are changing the industry also and you are changing the role also. हम्म, आप ऑटो से हटे ऑयल में आ गए, ऑटो में आप मार्केटिंग में थे और ऑयल में आप मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, आप बहुत मुश्किल में आ जाए। जी Either you go for industry change, keep the role same, either you keep the industry same, go for the role change. Swapping of both the things at the same time can create a difficulty for you. It's an advice only, but there are winners, those who can overcome every sort of problems and they can come. But it's my advice. जी Okay? Yes. लव अच्छा सर ऐसा तो नहीं है आपने बोला देर आर विनर्स इन लाइफ जो सब जीत लेते हैं देर आर ऑल्सो पीपल हु फेल समटाइम्स डज नॉट मीन कि वो लोग फेलियर्स या लूजर्स है बट हमारी सारी जिंदगी में रोलर कोस्टर की जैसे कभी कभी सक्सेस आती है तो कभी कभी फेलियर्स भी आते हैं तो कैसे हम अपने फेलियर्स को मैनेज करें और हाउ डू वी एक्चुअली स्टे रिजिलियंट इन फ्रंट ऑफ आवर फेलियर्स एंड नॉट lose ourselves because of those failures. Take a very good example of Professor, you can say Dr. Abdul Kalam. जी He got failures in the very, very early stage of life. He could not get success. He was thinking of his suicide. He went for the suicide, but he got saved. Then he approached a holy person. He asked his questions, and he replied that you are meant for something else. Then he got the opportunity to work in the field of science and this rocket science. And today, India is achieving so many milestones in the space. So he is one of the key factors. One of the key. Satish Dhawanji was also there. Dr. Abdul Kalam is there. So many names are there, but he also changed his approach, changed his life after the so many of failures. I take very good current example of MS Dhoni. He was a cricketer. Passion was cricket was his passion. जी
And one thing is there, if your passion becomes your profession, success is bound to come. Abdul Kalam, passion becomes profession. Sachin Tendulkar, passion becomes profession. MS Dhoni, passion becomes profession. So all these are great successes. Dhoni ji was selected in railways. His family compelled him to work for the railways. Government job मिला है, आपको नहीं छोड़ना है. He is working in Bengal, shuttling down here and there, shuttling down here there. He found that he cannot follow his passion. He dropped the job, went for the passion. तो ऐसा नहीं कि उसने प्रेशर नहीं झेला सरकार का, मतलब फैमिली का, लेकिन उसने उस पैशन को भी कूलली एकदम से हैंडल किया और अपने पैशन को फॉलो किया. अगर आप किसी फील्ड में आपको फेलियर आया है और वो फील्ड आपका पैशन का है, प्रोफेशन आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आप कुछ और अच्छा करने वाले हैं, ये आपको मालूम. एफर्ट्स काउंट्स. अगर आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में है, आपने ठीक ढंग से उसको प्रोसेस को फॉलो किया है, तो सक्सेस आज नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. सक्सेस इज बाउंड टू कम. वो कौन सी फिल्म थी, 3 इडियट्स जी. तो क्या कहता है कि सक्सेस, अब आप नॉलेज गेन करिए, सक्सेस तो अपने आप आए. जी. तो आप प्रोसेस को फॉलो करिए. अगर आपके पास नॉलेज है, आपने उसको अपडेटेड, मैं कहता हूँ आपने बहुत कोशिश करी और आप नहीं कर पाए, दैट मीन्स यू नीड समथिंग मोर. वन स्टेप फेलियर इज नॉट ए फेलियर इन द लाइफ. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू समथिंग बेटर देन दिस. तो थोड़ा सा अगर हमें पेशेंस है, और पेशेंस रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, मतलब मैं एक चीज अक्सर बच्चों को कहता हूं, हालांकि बच्चे इस बात को नहीं मानते हैं, पेरेंट्स भी इस बात को नहीं मानते हैं. प्रीएम्प्टिवनेस होना चाहिए. प्रीएम्प्टिवनेस का मतलब क्या है कि अपने दिमाग में बिठा लो कि यार ये जो मैं गेम खेल रहा हूं इसमें दोनों चीजें हैं, सक्सेस भी है, फेलियर भी है. जी. आपने बिठा लिया, ठीक है. तो जब आपको फेलियर आएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सोच रखा था अगर फेलियर आएगा तो मुझे क्या करना है. सक्सेस आएगी तो ठीक है, मुझे और सक्सेस गेन करनी है, बट फेलियर कम्स तो व्हाट टू डू. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैं एक बच्चे को काउंसलिंग कर रहा था और बहुत डिफिकल्टी आ रही थी. उसकी मम्मी बार बार पोक कर रही थी, उसके पापा बार बार पोक कर रहे थे. तो मैंने काउंसलिंग छोड़ दी. टुडे सेशन इज ओवर, विल टेक इट आफ्टर 2 days और 3 days. छोड़ दिया उसको. अब मुझे लगा नहीं तो मेरा फेलियर हो गया कि मैं बच्चे को काउंसलिंग नहीं कर पाया. नो, I took it as a challenge. So failure should be taken as a challenge. Then I SWOT में गया. बच्चे की स्ट्रेंथ क्या थी, बच्चे की वीकनेस क्या थी, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी क्या थी. अपॉर्चुनिटी थी लेकिन थ्रेट क्या था, पेरेंट्स. तो सबसे पहले मुझे थ्रेट को हटाना है. तो नेक्स्ट टाइम पेरेंट्स को बाहर कर दिया, बच्चे को सामने बिठाया, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में उसको बताया. वीकनेस के ऊपर बात नहीं करी मैंने, सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर बात. देन थोड़ा थोड़ा उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आया. सेल्फ पॉजिटिव टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. सुबह उठ के अगर साक्षी शीशे में देखती है कि मेरे से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, मैं खूबसूरत हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ, आई विल गेट द सक्सेस. दैट्स ऑल. 5 सेंटेंस आपको बोलने हैं. और ये सेंटेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप अब्दुल कलाम जी के सुनेंगे तो उन्होंने खुद कहा है कि आपको ये सेंटेंसेस सुबह उठ के अपने आप को बोलने हैं. पॉजिटिव सेल्फ टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के फेलियर से ऊपर ओवरकम करने में बहुत आसानी होती है. एवरी स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स. एवरी प्लेयर हैज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स and has to keep confidence in yourself. The success will be there. Definitely, I am following the right path. I am doing a hard work. आज की डेट में ना हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग आ गई. कि आपको स्मार्ट वर्किंग में सामने वाले की वीकनेसेस भी पता लगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. अगर कंपटीशन है तो इस तरह से करते हैं तो बड़े आराम से आप भी साइलेंट रहेंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे. सो नटशेल में पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रीएम्प्टिवनेस. अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सोच लें कि मेरा अगर फेलियर भी आएगा तो मुझे क्या करना. प्रीएम्प्टिवनेस होता है, सोच के चलता है. और सेकेंडली, thirdly, more importantly, confidence in yourself that you are smart,
you are intelligent, you are hardworking, success will follow. ऑडियंस जो ये देख रहे हैं उन्हें भी आपसे इतना ही सीखने को मिलेगा जितना मुझे मिला है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि एबीसीडी की वजह से मेरे को ये मौका मिला कि मैं आपसे इतना कुछ सीख सकूं, आपसे पर्सनली बात कर सकूं, इतना कुछ समझ सकूं। फॉर Thank माई you. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई वॉन्ट टू आस्क यू, आप रिसेंट ग्रेजुएट जो अभी अभी जॉब मार्केट में जा रहे हैं, अभी अभी उन्होंने अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस होगी? आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो हमें लगता है हमें जॉब लेनी है, जॉब करनी है। जी। एक्चुअली में यू आर ए प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा आपको स्किल भी चाहिए, उस फील्ड का स्किल का भी एक्सीलेंस चाहिए। आप चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आप टीचिंग लाइन में हैं, बैंकिंग में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप टेली कम्युनिकेशन में हैं, आप ऑयल में हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, एयरलाइंस में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आपको अपने आप को इस तरह से दिखाना है, इस प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाना है कि सामने वाला आपको खरीद सके, सामने वाला आपको खरीद ले कि नहीं, ही इज द बेस्ट। तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ, ठीक है मेरे पास डिग्री है, ग्रेजुएट है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मेरे पास स्किल भी है, मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मान लीजिए 2 साल का मैंने इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में कर ली थी, मैंने उसमें हो सकता है ट्रेनिंग भी करी है उसमें कंपनी में। देन कम्स हाउ डू यू सेल योरसेल्फ, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। 5 इंटरव्यू पैनल के लोग बैठे हैं, सामने एक बच्चा आता है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि क्या चाहिए जॉब इंडस्ट्री। आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम टेलिंग यू द आंसर। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आई एम ए ग्रेजुएट, आई हैव गॉट स्किल डेवलपमेंट, आई हैव गॉट 5 years experience, and so I am the best। ये उसका आंसर, कैंडिडेट 1 का ये आंसर। आई एम ग्रेजुएट, I have done some skill development, I have a 5 years experience sir in this field, and I can be selected on the basis. Okay, now comes the second candidate. They say, okay, wait, now option comes. Sir, I am automobile engineer. Yes, come for an automobile company. Automobile engineer. Have gained some skill development in the relevant field. Have got a very good experience of 3 years of marketing in a good company, Maruti sales. So I feel I'm quite competent for this post. Now comes the third candidate. Sir, thank you very much for giving me an opportunity to tell about myself. I have done my automobile engineering from the Shankara Institute of Technology, Jaipur, from Rajasthan, under Rajasthan University in 2018. And sir, I got the opportunity to upgrade myself through the skill development. I have done all these 5 courses relevant to these fields, and still I am following these 2 diploma courses to keep myself updated in this field. And very fortunately, I got the chance to work at a very prominent company, Maruti Automobiles, and I was working in the marketing company. 2 years I have worked in the marketing, and 1 year I have worked in the sales department. Keen to work in the manufacturing unit also, but anyhow, keeping in my experience and my knowledge, they have given me the marketing and then give the sales, and I'm quite eager to learn the new things also, and eager to face the new challenges also. So thank you very much, sir. Give me a chance, I will not let you go. So now you tell me, 3 candidates have come, तीनों graduate हैं, तीनों automobiles में, तीनों का कंप्यूटर कोर्स है, एक का 5 साल का एक्सपीरियंस है और बाकी दोनों का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तीनों एक ही कैटेगरी से हैं। अब बताइए आपका सिलेक्शन किसका होगा? So पर्सनली मुझे सबसे लास्ट वाले का पिच बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो बेटा, एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अगर अपने आप को सेल करना है जॉब मार्केट में, so communication skills is very very important part
ऑफ टुडेज वर्ल्ड, जिसमें कि थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूं कि बच्चों के अंदर कमी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपका अच्छा है, आपके अंदर हो सकता है एक्सपीरियंस कम हो सकता है एकेडमिक एक्सीलेंस कम हो सकता है आपका टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा वीक हो, बट इफ यू कैन present yourself in a positive way, Hmm. in a presentable mood, you can get the success. So that's also one of the methods. I am not denying that academic qualification is necessary, skill development is necessary, experience is also required. But the thing, how do you put up to the others? So जो भी young बच्चे जा रहे हैं, they should have some workout on the communication. They should work on the some communication skills as well. Hmm. And preemptiveness here again required. If you are going to sell yourself, if you are going to present yourself, how will you present? It depends. आपका ड्रेस कोड भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका सिटिंग पोस्चर भी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है बेटा, बहुत पहले हमने सुन ली थी, फर्स्ट योर ड्रेस देन योर एड्रेस, फर्स्ट योर ड्रेस देन Then योर एड्रेस address. काउंट्स। जी. आपको अगर जॉब मार्केट में जाना है तो देखिए जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है। अभी इसमें लास्ट में एक चीज ऐड नहीं करी है, मतलब इसी कम्युनिकेशन स्किल्स में ही फोर्थ कैंडिडेट जो आता है वो बताता है सर आपकी कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर 2 ईयर से ग्रोथ सेल्स में थोड़ी सी कमी आ रही है और इसको अपग्रेड करने के लिए हमें ये एवेन्यूज हैं जो हमें जनरेट करने चाहिए। तो दे गॉट शॉक कि ही हैज स्टडीड अबाउट आवर कंपनी आल्सो। Yes. तो जो जॉब उसको हम ऑफर करने जा रहे हैं उसके बारे में वो स्टडी करके आया है, ऐसे ब्लैंक नहीं आया है। तो प्रीएम्प्टिवनेस आपको बहुत जरूरी है कि आप उस जिस भी मार्केट में जाना चाहते हैं उसमें क्या बेस्ट चल रहा है, क्या उसमें शॉर्ट कमिंग्स है, मार्केट में कंपनी को क्या चाहिए, वो भी आप स्टडी करके जाए। देन यू कैन सेल योरसेल्फ, यू हैव टू सेल, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। शादी के लिए दूल्हा जाता है, कभी देखा ढीले ढाले कुर्ते पजामे में या टी शर्ट निक्कर में जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कभी लड़की को भी देखा नाइटी में चली जाएगी? बिल्कुल नहीं. तो इफ यू आर looking for a suitable match, Hmm. you have to dress up yourself. तो सिमिलरली बेटा अगर जॉब मार्केट में जा रहे हो, आप एक मैच ढूंढना चाह रहे हो, तो यू हैव टू ड्रेस अप योरसेल्फ फिजिकली आल्सो एंड मेंटली आल्सो, देन यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ, देन यू कैन गेन। यस, That was such a comprehensive and lovely answer. मेरे को अब पता चल गया कि मेरे को अपनी इंटरव्यूज के लिए कैसे रेडी होना है सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड थैंक यू ABCD कि मेरे को ऐसा मौका मिला कि आई गॉट टू नो एंड लर्न सो मच फ्रॉम यू, सो मच. It was really eye-opening having all your inputs and answers. And there were so many things मेरे को confusion थी, मेरे को नहीं पता थी, जो मेरे को आपसे सीखने को मिली है. Thank you. Thank you very much, Sakshi, and I also thanks to yourself also and to the ABCD also. And I make a request, open request to yourself or to the ABCD also, that if students are there having some doubts on their capabilities or some you can say कि mental torture, आज की डेट में mental torture होता है बच्चों के साथ, or some fear, apprehensions on their capabilities, or they need some career clarifications of their career counselings. Our company, Sarbuki Counselors, is ready to help them. You can share our numbers on the platform if you want, or they can contact us through ABCD, and we are ready to help them and guide them out, so that it's a service to the nation also. If we are serving to the youngsters, bringing them out of their trauma, so definitely they are an asset of the country, they're asset of their family, so they can be they can use themselves in a proper way. So if our company can help them out, so we are thankful to the ABCD, and we will be more thankful if we can both mutually work together and help some students. Okay, thank you.